Hello student, in last video we have studied statistical series and types of statistical series. Statistical series are two types, that is individual series and frequency series. Individual series, or we can say series without frequency. Frequency series, or we can say series with frequency. Frequency series has further divided into two parts, discrete series or frequency array and frequency distribution series. बेटा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इंडिविजुअल सीरीज को एग्जाम्पल से समझा था, डिस्क्रीट एंड फ्रीक्वेंसी को भी समझा था. आज हम our today's topic is difference between frequency distribution and discrete series, or we can say difference between frequency distribution and frequency array. We have examples of discrete series and frequency distribution series. Discrete series में बेटा हमारे पास x items and their frequencies, items 1, 2, 3, 4 and frequency with 50, 70, 90, 120 and 200, and frequency distribution, your items in range 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 and their frequencies are given. Now we will understand the basic difference between frequency distribution and frequency array. In this example, we can easily say that the item 1 is repeated by 50 times. Okay? Means values of x variable are discrete variable. जो x वेरिएबल है वो क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल है. ठीक है, और इसमें हम एडजेक्ट ये मेजर कर सकते हैं कि जो एडजेक्ट आइटम है वो कितने टाइम रिपीट हुआ है. ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में x वेरिएबल डज नॉट शो डिस्क्रीट वैल्यूज. जो x वेरिएबल है वो आपकी डिस्क्रीट वैल्यू शो नहीं कर रहा. मीन्स rather it show a range of value और different class interval. इसमें क्या है, ये एक रेंज वैल्यू को शो कर रही है. ठीक है, मीन्स यहाँ पे आप आइटम्स को एडजेक्ट मेजर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप एडजेक्ट आइटम की एडजेक्ट फ्रीक्वेंसी को मेजर नहीं कर सकते. Frequency array refers to discrete series showing frequencies corresponding to some discrete value. क्या होती है, जो discrete series होती है और frequency array जो होती है वो क्या करती है, वो show करती है frequencies को with their discrete values. जो भी discrete values हैं उनके according उनकी frequency को show करती है. But in frequency distribution showing frequencies corresponding to different class interval. यहाँ पे जो frequency show होती है वो class interval के बेस पे show होती है. So this is the basic difference. Frequency distribution is also known as, जो frequency distribution होती है उसको हम continuous series भी बोलते हैं. ठीक है, frequency distribution is also known as continuous series or series with class interval or series of grouped data. So frequency distribution is known as continuous series, series with class interval और series of grouped data. यहाँ पे क्या होते हैं, डेटा जो होते हैं वो grouped होते हैं, but in discrete data are not grouped. This is the basic difference between frequency distribution and frequency array. Now
we will understand some important terms relating to frequency distribution. Some important terms. First is class, next is class limits and next is magnitude of class interval. बेटा ये हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज को पढ़ेंगे और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में इन सभी का बहुत ज्यादा यूज है जो हमें आगे टाइप्स में समझना है. सो वी विल अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट आइटम्स वन बाय वन. फर्स्ट इज क्लास, अ रेंज ऑफ वैल्यू. जो भी वैल्यूज हैं उनकी जो रेंज गिवन है दैट इज क्लास. फॉर एग्जाम्पल 5 to 10, दिस इज योर range of class. Next is class limits, the extreme value of a class. कोई भी क्लास है उसकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो क्या होती है? क्लास लिमिट होती है. अब इस चीज को समझना है. जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती है हर एक क्लास की, देयर आर टू वैल्यूज, L1 and L2. L1 is lower limit and L2 is upper limit. In this example, 5 is lower limit and 10 is upper limit. Now, magnitude of class interval. It is the difference between upper limit and lower limit. जो upper limit और lower limit में जो difference होता है, this is magnitude of class interval. Or we can say your upper limit is 10 minus 5. So, your magnitude of class interval is 5. So these are the some important unit of your chapter relating to frequency distribution. Magnitude of class interval is denoted as I. And how we calculate I? L2 minus L1. This is the interval. Means this is the difference between upper limit or lower limit. Okay. Now we will understand mid value. Mid value is calculated by upper limit plus lower limit divided by 2. Mid value is the average value of upper and lower limits. It is known as adding up upper limit and lower limit values and dividing the total by 2. Thus, mid value is equal to upper limit plus lower limit divided by 2. For example, what is the mid value of the class 5 to 10? 10 plus 5 divided by 2. 15 divided by 2 is equal to 7.5. So, the class 5 to 10 mid value is 7.5. So, first is class. Class is the range value. Class limit, extreme value of the class. Magnitude of the class is difference between upper limit and lower limit. And mid value. Mid value is the average value of upper limit and lower limit. Now we will study types of frequency distribution. Frequency distribution is of 5 types. First one is exclusive series. Next is inclusive series. Next is open end series. Fourth is cumulative series. And fifth is mid values frequency series. Now we will understand these series one by one. Our first series is exclusive series. Exclusive series is that series in which every class interval excludes item
corresponding to its upper limit. Means हर एक क्लास इंटरवल जो है उसकी जो अपर लिमिट है वो क्या होती है, एक्सक्लूडेड होती है. इन दिस सीरीज द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल इज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल. इस सीरीज में अपर लिमिट जो होती है एक क्लास की वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट होती है. इट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव सीरीज. इसको हम एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं बिकॉज फ्रीक्वेंसीज ऑफ द अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट क्लास. क्योंकि जो अपर लिमिट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है उस क्लास में इंक्लूड नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, वी विल अंडरस्टैंड दिस सीरीज बाय एन एग्जाम्पल. नाउ this is the example of frequency series. In this series, marks are given in range 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 and 30 to 35. And these are their frequencies. Means 10 to 15 marks score करने वाले जो students हैं वो कितने हैं, 4 हैं. और we can say 10 से 15 तक जो marks repeat हुए हैं वो कितने टाइम हुए हैं, 4 टाइम हुए हैं. अब इस चीज को समझो बेटा. हमने कहा एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है. देखो, द फर्स्ट क्लास इंटरवल, फर्स्ट क्लास इज 10 to 15. इट्स अपर लिमिट इज 15. दिस अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस सीरीज. दिस अपर लिमिट इज इंक्लूडेड इन नेक्स्ट सीरीज. ठीक है, हमने क्या कहा, एक्सक्लूसिव सीरीज जो होती है वो सीरीज होती है जो क्लास की अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करती जब वो फ्रीक्वेंसी को मेजर करती है. ठीक है, तो यहाँ पे जो आइटम्स इंक्लूड होंगे, जो मार्क्स इंक्लूड होंगे फ्रीक्वेंसी में, वो कहां से कहां तक होंगे, 10 से लेके 14 तक मार्क्स इंक्लूड होंगे. ठीक है, 14.9 तक भी इंक्लूड होंगे. लेकिन 15 जो है वो कहां पे इंक्लूड होगा, नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड होगा. ऐसे ही जो 20 है वो यहां पे इंक्लूड ना होके नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड होगा. सेम ऐसे 25, 35, 30 एंड 35. सो एक्सक्लूसिव सीरीज के बारे में हम क्या कहेंगे, इट इज क्लियर फ्रॉम दिस टेबल दैट द अपर लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल रिपीट्स इटसेल्फ एज ए लोअर लिमिट ऑफ द next class interval. So also it may be noted that all values corresponding to say 15, 20, 25, 30, 35 both are included in next class interval as a lower limit. Okay, तो हमने यही कहा कि जो 20 है, the value of 20 will be included in the class interval 20 to 25. जो 20 की वैल्यू वो कहां पे इंक्लूड होगी, 20 से 25 में इंक्लूड होगी. नॉट इन द क्लास इंटरवल 15 to 20. 15 to 20 में इंक्लूड ना होके 20 की वैल्यू 20 से 25 में इंक्लूड होगी. इसी वजह से सीरीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज. नाउ वी विल अंडरस्टैंड इंक्लूसिव सीरीज. Now exclusive series. An exclusive series is that series in which includes all items up to its upper limit. Means इसमें lower limit से लेके upper limit तक सारे आइटम क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं. ठीक है, एक्सक्लूसिव का मतलब समथिंग एक्सक्लूड है, इंक्लूसिव का मतलब सब कुछ इंक्लूड है. उसने क्या कहा, इन एक्सक्लूसिव सीरीज इज दैट सीरीज इन विच includes all items up to its upper limit. In such series, the upper limit of class interval does not repeat itself. Exclusive series में क्या था, जो upper limit थी वो repeat हो रही थी. कैसे, next class की lower limit से. ठीक है, लेकिन in such series the upper limit of class interval does not repeat itself as a lower limit of next class interval. This is the basic difference between exclusive and inclusive.
So exclusive series example is marks is given 10 to 14, means 10 to 14 all marks are included in this frequency. Next class is 15 to 19, means all values are included in this class. 20 to 25, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34. So in this series all items up to its upper limit are included. Okay. So what is the basic difference between exclusive series and inclusive series? In case of exclusive series, upper limit of one class interval repeat itself as lower limit of next class interval. क्या होता है एक्सक्लूसिव सीरीज में? जो हर एक क्लास की अपर लिमिट होती है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट हो जाती है, मीन्स अपर लिमिट जो वो रिपीट होती है. बट इन एक्सक्लूसिव सीरीज ऐसा नहीं होता. मीन्स इन एक्सक्लूसिव सीरीज द अपर लिमिट of class interval does not repeat itself as lower limit of next class interval. Okay, now we will understand how we convert exclusive series into the conversion of inclusive series into exclusive series. So our next topic is conversion of inclusive series into exclusive series. हम inclusive series को exclusive series में कैसे convert करेंगे? So our first step is we will find the difference between the upper limit of a class and lower limit of a class. Means we can say first we find the difference between upper limit of class interval and the lower limit of next class interval. Here the difference is 15 minus 14. It is 1. Next step is half of the difference is added to the upper limit of a class interval and half is subtracted from the lower limit of the class interval. अब इस डिफरेंस का क्या कर देंगे? हम हाफ कर देंगे. सो दिस इज 0.5. अब इसमें क्या करेंगे? इसको जो लोअर लिमिट है उसमें से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. एंड जो अपर लिमिट है उसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे. मीन योर लोअर लिमिट इज 10 minus 0.5. So your lower limit became 9.5 and your upper limit is 14. So we will add 0.5 in this. So your upper limit is 14.5. Same here, 15 minus 0.5. So this became 14.5 and we will add 0.5 in 19.5. सेम प्रोसीजर चलेगा आगे तक. तो ये क्या हो जाएगा? इस तरीके से ये सीरीज आपकी चलेगी. सो बेटा इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर सकते हो. क्या करना है आपको ये करना है कि पहली क्लास की लोअर लिमिट और उससे नेक्स्ट क्लास की अपर लिमिट दोनों का डिफरेंस देखना है. दैट इज 1. इस डिफरेंस को हाफ करना है. जो हाफ डिफरेंस जो आ गया अपर और लोअर क्लास का, उसको क्या करना है? लोअर लिमिट में तो लेस कर देना है और हर एक अपर लिमिट में ऐड कर देना है. सो दिस इज योर इंक्लूसिव सीरीज एंड आफ्टर दिस चेंज this series became exclusive series because it starts from 0.5 and its upper limit is 14.5 and its upper limit repeat itself क्योंकि ये नेक्स्ट क्लास की क्या बन गई? लोअर लिमिट बन गई. ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे?
इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे. नाउ अवर नेक्स्ट सीरीज. Now we will understand our next series, that is open end series. In open end series, lower limit of the first class interval and upper limit of the last class interval is missing. As you see it in the example, marks below 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 and above. So first class interval lower limit is missing and last class interval upper limit is missing. So open end series is that series in which lower limit of first class interval, means this lower limit of first class interval and the upper limit of last class interval is missing. Now how we calculate upper limit and lower limit of first and last class interval? We will see the difference. What is the difference? In these class, what is the difference? 5. Here is also 5 and here is also 5. So we will add to find upper limit, the interval, that is 5. So last class interval, last class upper limit will be 25 and first class lower limit will be 0. ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो अदर क्लासेस गिवन है उनमें जो इंटरवल है वो क्या है. 5 है. तो हम क्या करेंगे, जो लोअर लिमिट अगर हमें निकालनी है तो अपर लिमिट में से जो इंटरवल है उसको लेस कर देंगे. तो आपके पास क्या आ जाएगी, लोअर लिमिट आ जाएगी और यहाँ पे जो इंटरवल है उसमें ऐड कर देंगे. तो आपके पास क्या आ जाएगी, अपर लिमिट आ जाएगी. वी कैन से लोअर लिमिट हम कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस इंटरवल. ठीक है, और अपर लिमिट कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हम अपर लिमिट में इंटरवल को लेस कर देंगे. मीन्स जब हमने 5 में से, इंटरवल हमारा 5 था, 5 में से 5 को लेस किया तो हमारे पास क्या आ गई, लोअर लिमिट इज 0. सो L1 इज इक्वल टू L2 माइनस इंटरवल. और L2 कैसे निकालेंगे, L1 में जब इंटरवल को ऐड कर देंगे. इस तरीके से हम ओपन एंड सीरीज को भी एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. अभी हमें क्या समझना है कि ओपन एंड सीरीज क्या होती है, इन विच लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड द अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल इज मिसिंग. दिस इज योर ओपन एंड सीरीज. नाउ और नेक्स्ट सीरीज इज मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज. Mid value frequency series are those series in which we have only mid values of the class interval and the corresponding frequency. इसमें क्या होता है, जो क्लास इंटरवल जो होते हैं, क्लास इंटरवल की क्या होती है, मिड वैल्यू गिवन होती है. ठीक है, मिड वैल्यू गिवन होती है और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है. इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, मिड वैल्यू सीरीज. अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ मिड वैल्यू सीरीज. इन दिस मिड वैल्यूज एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर गिवन. नाउ हाउ वी कैलकुलेट क्लासेस. टू कैलकुलेट क्लास इंटरवल वी विल ऐड. बेटा जो मिड वैल्यू सीरीज होती है, इन सीरीज को जब हम एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. लोअर लिमिट और अपर लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो मिड वैल्यूज हैं उनमें जो इंटरवल है वो क्या है. देखो 5 से 15 क्या इंटरवल है, 10. And what is the difference between 25, 15?
this is also 10, this is also 10, this is also 10. So your interval is 10. This is your first step. Now अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इंटरवल को हाफ करेंगे, मीन्स 10 का हाफ कर देंगे. दिस इज 5. नाउ लोअर लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, L1 से डिनोट करते लोअर लिमिट को, L1 से मिड वैल्यू में जो आपका इंटरवल है उसका हाफ लेस कर देंगे, और अपर लिमिट को निकालने के लिए क्या करेंगे, मिड वैल्यू में जो आपका ये डिफरेंस जो हाफ है उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. मीन्स योर मिड वैल्यू इज 5. नाउ योर डिफरेंस हाफ इज 5. 5 माइनस 5. सो फर्स्ट क्लास जो है उसकी लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी. नेक्स्ट 5 प्लस 5 क्या आ जाएगी, अपर लिमिट 10 आ जाएगी. मीन्स ये जो क्लास है कहां से शुरू होगी, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से ये चलेगी. मीन्स जब आपके पास मिड वैल्यूज गिवन होती हैं तो सबसे पहले आपको मिड वैल्यू के बीच में डिफरेंस देखना है, उस डिफरेंस को हाफ करना है, और मिड वैल्यू में एक बार लेस कर देना है और एक बार ऐड कर देना है. जब आप लेस करेंगे तो आपके पास लोअर लिमिट आएगी, और जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास अपर लिमिट आएगी. इस तरीके से आप मिड वैल्यू सीरीज को सिंपल सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे, और वी कैन से एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर देंगे. तो इसका अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, ये जो सीरीज आ जाएगी क्या आएगी, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50. ये जो है आपकी क्लास इंटरवल्स आ जाएंगे. ओके, एंड देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी आर विल बी सेम. जो आपकी फ्रीक्वेंसीज रहेंगी क्लास इंटरवल्स की वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी. ओके, नाउ योर लास्ट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी सीरीज इज cumulative frequency series. बेटा योर लास्ट सीरीज इज cumulative frequency series. Cumulative frequency series is that series in which series are continuously added corresponding to each class interval in the series. अब इसमें क्या होता है, जो सीरीज जो है आपकी गिवन सीरीज जो है उसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ऐड होती चली जाती है. कुमुलेटिव का मतलब यही होता है ऐड हो जाना, किसी चीज को कुमुलेट कर देना, इकट्ठा कर देना. अब there are two ways of converting into series, into normal series, into cumulative series. So we will understand. देखो बेटा, we have an example of simple frequency series. In this series we have marks and their frequencies, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30. And their respective frequency is given in front of each class interval. Now, how we calculate cumulative frequency series? Cumulative frequency may be expressed on the basics of upper limit of the class interval and lower limit of the class interval. Upper limit of the class interval में हमने लिखा, for example, less than 10, less than 15, less than 20, less than 25, less than 30, and lower limit में क्या हो सकता है, more than 5, more than 10, more than 15, more than 20, more than 25. Now we will convert this simple frequency series into cumulative frequency series. When we convert in cumulative frequency series on the basis of upper limit of the class interval, then we will write less than 10. upper limits लेंगे सभी, less than 15, less than
20, less than 25 and less than 30. Now देखो 10 से कम कितना है 3, so frequency is 3. Now 15 से कम कितना है, देखो 15 से कम मीन्स दोनों ऐड हो जाएंगे 3 and 8, so their frequency is 11. Now 20 से कम मीन्स ये और ये जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो ऐड हो जाएंगी, क्योंकि हमने क्या कहा 20 से कम, तो 20 से कम क्या हो गया, यहां तक जो है ऊपर वाली सारी फ्रीक्वेंसी 20 से कम है, तो हमने क्या कहा दिस इज 20. सेम ऐसे ही 4 ऐड हो जाएगा, फिर 24, आफ्टर दैट 28. सो जब हम फ्रीक्वेंसी सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज को कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज बनाते हैं ऑन द बेसिक ऑफ अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, तो हम कैसे बनाएंगे, अपर लिमिट लेंगे और जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो कॉन्टिन्यूसली ऐड होती चली जाएंगी, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है वो आपस में क्या होती चली जाएंगी, ऐड होती चली जाएंगी. क्यों होती चली जाएंगी, क्योंकि देखो 5 to 10 फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 है, इसका मतलब 10 से कम 10 से कम कितने हैं 3 हैं. अब देखो 10 से 15 मीन्स 10 से लेके और 15 तक मीन्स 15 से नीचे कितने हो गए, तो 15 से नीचे तो 3 और 8 दोनों ऐड हो जाएंगे. इस तरीके से हम क्या करेंगे, जब हम कुमुलेटिव सीरीज को अपर लिमिट के बेस पे कन्वर्ट करते हैं तो जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है वो सब क्या हो जाएंगी, ऐड होती चली जाएंगी. नाउ वी विल कन्वर्ट दिस सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज into cumulative series on the basics of lower class limit of the class interval. अब हम क्या करेंगे, lower limit are these are lower limit. Now we will convert cumulative frequency series on the basic of lower class interval. देखो बेटा हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, more than 5, more than 10, more than 15, more than 20 and more than 25. अब देखो 5 से ज्यादा कितने मार्क्स हैं, मीन्स टोटल मार्क्स जो हैं वो 5 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, टोटल मार्क्स हमारे कितने आए थे 28. अब हमें क्या करना है, 10 से ज्यादा मार्क्स देखने हैं, तो जो 5 to 10 मार्क्स हैं, जो 5 से लेके 10 तक मार्क्स हैं उनको क्या कर देंगे, टोटल में से लेस कर देंगे. मीन्स मोर देन 10 कितने हो जाएंगे, 28 माइनस 3 दैट इज 25. नाउ मोर देन 15 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हम क्या करेंगे, जो अपना 25 है उसमें से क्या करेंगे 8 को लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया 17. नाउ वी विल लेस 9 देन 8 नाउ 4. इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो हमारी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है उनको लेस करते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या निकालना है, मोर देन निकालना है, और जब हम लेस देन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते चले जाएंगे. ठीक है बेटा, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा these are our topics which we covered in this video. First is difference between discrete series and frequency distribution series. हमने पढ़ा कि discrete series में और frequency distribution में क्या डिफरेंस है. ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा some important terms that are class limit, magnitude of class interval and mid value. Next, type of frequency series that are exclusive, inclusive, open end series, cumulative frequency series and mid value series. ठीक है, तो यहां तक जो है आप प्रॉपरली कवर करेंगे और अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.